Pascal's law states that write down next heading, Pascal's law. Pascal's law states that Pascal's law states that Pascal's law states that the pressure at a point in a fluid at rest has the same magnitude in all direction, has the same magnitude in all direction. And pressure always acts normal to the surface. And pressure always acts normal to the surface. Pressure always acts normal to the surface. Okay, that is why pressure is a scalar quantity. That is why pressure is a scalar quantity. That is why pressure is a scalar quantity. Next line, for fluid at rest, Mohr circle, for fluid at rest, Mohr circle is the point. Mohr circle is the point. Next heading, Mohr circle is the point. Next heading, you should give atmosphere pressure. Atmospheric pressure or atmosphere pressure. Okay, better to write atmospheric pressure. Atmospheric pressure denoted by PATM. Write down this heading and write down under it. Write down the pressure exerted by the pressure exerted by environmental mass is known as
the pressure exerted by environmental mass is known as atmospheric pressure, is known as atmospheric pressure. Pressure exerted by environmental mass is known as atmospheric pressure. That is roughly is equal to 1 bar. 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 Atmospheric pressure measured by the means of the atmospheric pressure is measured by the means of atmospheric pressure is measured by the means of barometer वायु दाब मापी is measured by the means of atmospheric pressure is measured by the means of barometer वायु दाब मापी barometer. That is why it is also called as barometric pressure. That is why it is also called as barometric pressure. That is why it is also called as barometric pressure. एक डाउट है यहाँ अभिषेक, सो शियर स्ट्रेस भी स्केलर नहीं बेटा, स्ट्रेस है वो टेंसर क्वांटिटी है, टाउ एक्स वाई एक्स फिक्स का रिक्वायरमेंट है ना, वाई फेस वाई टाउ वाई फेस एक्स डायरेक्शन, सो फेस का रिक्वायरमेंट शियर स्ट्रेस में भी है. स्ट्रेस मींस व्हाट? टेंसर क्वांटिटी, दैट्स इट. ओके. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है because it can be measured by the means of with the help of barometer. और जो environmental mass pressure exert कर रहा है that is called as atmospheric pressure. और atmospheric pressure के रेस्पेक्ट में जो भी प्रेशर में मेजर करता हूं, whatever pressure I am measuring with respect to or relative to the atmospheric pressure, that pressure is known as gauge pressure. That pressure is known as gauge pressure or gauge pressure, whatever you say. P gauge. If I am measuring the pressure with respect to or relative to the atmospheric pressure, means I am considering atmospheric pressure at the I am considering atmospheric pressure as the zero. Relative to that, whatever pressure will be there relative to that, that is your what? That is your what? Gauge pressure. Negative gauge pressure भी possible है. Means आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है that is your what? 760 mm of Hg. ये क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा भी बेटा. किसी लोकेशन पर 400 या 480 mm of Hg प्रेशर है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. या किसी एक लोकेशन पे 900 mm of
सो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है। और यदि मैं बोलता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस पे या रिलेटिवली मैं चेक करता हूं तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा 140 mm ऑफ Hg पॉजिटिवली, या ये मैं बोलता हूं 460 ही है, सो ये क्या हो जाएगा बेटा 460 है, 460 है तो ये 300 mm ऑफ Hg वैक्यूम। समझ में आया? नेगेटिव गेज प्रेशर, दैट इज योर व्हाट, नेगेटिव गेज प्रेशर, दैट इज योर व्हाट, नेगेटिव गेज प्रेशर। 760 दैट इज योर व्हाट, एटमॉस्फेरिक। रिलेटिव टू दैट मैं अपवर्ड साइड में जा रहा हूं, हायर प्रेशर साइड में जा रहा हूं, इसे जीरो कर देता हूं, और हायर प्रेशर साइड में 900 mm of Hg means relative to the 760 is what, 140। समझ में आया कि नहीं आया? या 760 से कम प्रेशर भी किसी एक लोकेशन पर हो सकता है। लेट मी से 460 mm of Hg है वहां पर प्रेशर, दैट इज योर व्हाट, वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर। जो भी मैं रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव साइड में जाऊं या नेगेटिव साइड में आओ, दैट इज योर व्हाट, गेज प्रेशर, दैट इज योर व्हाट, गेज प्रेशर। राइट डाउन वन लाइन फर्स्ट, then whatever that you want from the board, and I'll give you the more detail. Wait for some time, okay? But better to write down first. बताते हैं चंदन कुमार, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। मरकरी की डेंसिटी बहुत हायर है और इनमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। अभी हाइड्रोस्टैटिक लॉ जब डिराइव कर दूंगा ना चंदन, ये चीज क्लियर कर दूंगा। Pressure measured relative to the 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 atmospheric pressure is known as gauge pressure, is known as gauge pressure। Next line, pressure below the atmospheric pressure pressure below the atmospheric pressure pressure below the atmospheric pressure designated as vacuum pressure or negative gauge pressure। vacuum pressure or negative gauge pressure। Write down next heading, absolute pressure। P absolute। Write down next heading, absolute pressure। Write down next heading, absolute pressure। Absolute pressure
The pressure measured with respect to the pressure measured with respect to the pressure measured with respect to absolute zero, the pressure measured with respect to absolute zero, okay, the pressure measured with respect to absolute zero. यहां से आपको जो भी लेना है लीजिए फटाफट एक एग्जांपल, अभी और भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे विद इन 30 सेकेंड, फिर मैं एक स्कीमेटिक के थ्रू और ये चीजें डिटेल में बताऊंगा। That is your what? Absolute zero. Minus 273.16 Kelvin. That is your what, beta? Absolute zero. And somewhere I am having, that is your what? Atmospheric pressure. That is your what? Atmospheric pressure. That is your what? Atmospheric pressure. एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस पर ये आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, अभी इससे रिलेटिव मैं कोई प्रेशर मेजर करता हूं, अभी इससे रिलेटिव मैं कोई प्रेशर मेजर करता हूं और उसे हायर साइड में जाता हूं, सो दैट विल बी योर व्हाट? पी गेज। That will be your what? P gauge. मैंने कोई पॉइंट, एक A पॉइंट ले लिया है, that is your what? P gauge, पॉजिटिव साइड में, relative to the atmospheric pressure. हाँ, यदि मैं बोलता कि ये A पॉइंट पर प्रेशर मुझे एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस पर लेना है, ये A पॉइंट पर प्रेशर मुझे एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस पर लेना है, सो दैट विल बी योर व्हाट? पी एब्सोल्यूट। समझ में आया कि नहीं आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस पर ले रहे हैं, सो दैट विल बी योर व्हाट? इसको जीरो रेफरेंस बना लिया एंड उसके ऊपर जो प्रेशर मेजर किया ए पॉइंट पर, दैट विल बी योर व्हाट? गेज प्रेशर। नाउ मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस पर पॉइंट ए पर क्या प्रेशर है दैट आई वांट टू टेक, दैट इज योर व्हाट? पी एब्सोल्यूट। एंड फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन ऑब्जर्व दैट पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, दैट पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ if I want to measure the pressure at point B, if I want to measure the pressure at point B, I want to measure the pressure at point B, I want to measure the pressure at point B, and with respect to atmospheric pressure, that will be your what? P gauge. P gauge, or better to say P vacuum or P negative gauge pressure. But with respect to absolute zero, that will be your what? P absolute. So with respect to absolute zero, that will be always positive. But with respect to atmospheric pressure, gauge pressure can be positive or it can be
negative or vacuum. And that atmospheric pressure can be also termed as P absolute. Yes or no? समझ में आया कि नहीं आया इतना? एब्सोल्यूट के रेफरेंस में बात करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और हायर साइड में अपर साइड में जाते हैं तो पी गेज, और नेगेटिव साइड में आते हैं इट कैन बी और कॉल्ड एज पी वैक्यूम और पी नेगेटिव गेज. बट एट दैट सेम टाइम प्रेशर एट पॉइंट बी with respect to absolute zero is what? P absolute will be positive. Will be positive. Kidding me or not? इतना schematic लीजिए तो पहले आप डायग्राम लीजिए. I hope so ये चीजें समझ में आई हो. यस मोहित सर, नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम. देखो किसी एक लोकेशन पे, अगेन मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैं 900 एब्सोल्यूट के रेफरेंस पर बोला था. 900 एब्सोल्यूट के रेफरेंस पर, एब्सोल्यूट जीरो. बट यहां पर that will be your 140 mm of Hg. That is your what? Gauge pressure beta. Now 760 and now at point B that is your what? 460 mm of Hg. ये आपका क्या है? That is your what? With reference to absolute है. यहां से ये कितना है? 460 है. समझ में आया? बट 760 के रेफरेंस पर तो नेगेटिव साइड में जा रहा है, वैक्यूम होते जा रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में प्रेशर क्या है मोहित? कम है. कितना कम है? 300 mm ऑफ Hg. क्या ये चीज समझ में आई? यही एक एग्जांपल मैंने वहां पर लिया था. एब्सोल्यूट इज व्हाट? 460. बट अभी हमें बोला गेज या वैक्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी योर व्हाट? 300 mm ऑफ Hg वैक्यूम प्रेशर इज देयर. क्या ये चीज समझ में आई है? क्या ये चीज समझ में आई है बेटा आप लोगों को? प्रेशर फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट कैसे हो गया? ये बेटा एब्सोल्यूट जीरो से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यही पी एटीएम है. और यही यदि पी एटीएम को भी एब्सोल्यूट में लिखना है तो एब्सोल्यूट टर्म में यही आएगा. इससे रिलेटिवली पी गेज, ये जो पी एटीएम है ना वो एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में ही है, इसलिए मैंने पी एब्सोल्यूट भी मेंशन किया है. ठीक है, टेक दिस एज सून एज पॉसिबल एंड लेट मी नो व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड. Okay, we'll take the short break now. Take 10-minute break. Whatever that you want to take from the board, let you take. Then we'll meet after 10 minutes. Okay? Short break is there.
यस, वेलकम बैक। क्या डाउट है यहाँ पर गणेश? 460 mm ऑफ एच जी इज इट स्टैंडर्ड मेजरमेंट? नहीं बेटा, इज एन एग्जांपल बस लिया है मैंने। हाँ, ये 760 ऑफ mm ऑफ एच जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड जरूर है बेटा, है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, थोड़ी देर वेट करिएगा, बट पहले हम फंडामेंटल्स और बना लें। नाउ लेट मी प्रोसीड टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है? ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ जरा हम देखते हैं। नाउ that is your what? Free surface, and I am considering one square parallelepiped. I am considering one square parallelepiped. I am considering here one square parallelepiped. Means what? मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं स्क्वायर पैरेललोपाइपाइड शेप का below the free surface. Below the free surface. Below the free surface. Below the free surface. इसके टॉप सरफेस का फ्री सरफेस से जो डेप्थ है, दैट इज योर व्हाट? फ्री सरफेस। और जो पैरेललोपाइपाइड स्क्वायर पैरेललोपाइपाइड मैंने कंसीडर किया, उसके टॉप सरफेस की जो डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस, दैट इज योर व्हाट? एच। ओके, एंड दिस हाइट और साइड ऑफ द स्क्वायर पैरेललोपाइपाइड इज व्हाट? डी एच। ठीक है बेटा, एंड दैट एरिया, that area is what? dA, and the pressure acting is here P. Okay, if there will be any change in pressure, and pressure always acts normal to the surface, pressure always acts normal to the surface, again that area will be dA, and मैं बोलता हूं यहां आते आते प्रेशर P प्लस dP हो जाता है बेटा। यहां आते आते प्रेशर क्या हो जाता है? दैट विल बी योर व्हाट? P प्लस dP। ओके, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस in vertical direction, for the equilibrium of forces in vertical direction, एक डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है बेटा? दैट इज योर व्हाट? P, और एरिया क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, दैट इज योर व्हाट? PdA। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है मुझे ये बताएंगे क्या आप लोग? P प्लस dP dA। एंड इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो ये dP डिफरेंस बना है, ये भी हमें फाइंड आउट कर करके लाना पड़ेगा। If I'll say the weight density of the liquid that we have taken into the consideration is a small w, so weight of the square parallelepiped is small w dA dH. That small w is in the Newton per meter cube beta, multiplied by volume of that square parallelepiped, that is your what? dA multiplied by dH. dA multiplied by dH, that is your what? Volume, and weight density is what? Newton per meter cube. So Newton per meter cube multiplied by meter cube will get cancelled, and that what will get? Newton. Now that is your what? Equilibrium of forces in the vertical direction. Now we can say that PdA will get cancelled out, and dA that will get cancelled out.
again what we have beta, that is your what, dp by dh is equal to w. That dp by dh is equal to w. All of you are getting this or not? dp by dh is equal to w, or what I can say, dp is equal to w dh. dp is equal to w dh. dh, that is your what, कितना depth increase कर रहे हैं, that is your of depth of the square parallelepiped. If I'll say beta, if I'll say dh is equal to 0, means in the horizontal plane, dh is equal to 0 means in the horizontal plane, yes or no? If dh is equal to 0 means in the horizontal plane. What will get, if dh is equal to 0, so dp will be is equal to 0, yes or no? dp is equal to 0. So in horizontal plane, change of pressure is 0, or what I can say, in horizontal plane pressure will remain same. Pressure will remain same. Getting me or not? Pressure remains constant or remains same in the horizontal plane. Getting me or not? जहां dh मीन्स यहां पर कोई एक प्लेन है आपका, यहां पर कोई एक प्लेन में कंसिडर कर रहा हूं, सो इस पर्टिकुलर प्लेन पर ये एक h फिक्स है, dh इज इक्वल टू 0, यहां पर पूरे में सेम प्रेशर, और कोई मैं प्लेन कंसिडर करता हूं बेटा, यहां पर अगेन कोई प्लेन में कंसिडर करता हूं, तो यहां पर dh क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्लेन पर 0 हो जाएगा, तो change of pressure will be 0 means pressure will remain constant in the horizontal plane. समझ में आई कि नहीं है ये चीज? डेप्थ के साथ जैसे जैसे मैं dh इंक्रीज करता हूं, ऑब्जर्व करिए, जैसे जैसे मैं dh इंक्रीज करता हूं, जैसे जैसे मैं dh इंक्रीज करता हूं, सो यहां पर क्या होते जाएगा, dp इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे मैं गहराई पर जाते जा रहा हूं बेटा, प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आई है? जैसे जैसे मैं गहराई में जाते जाऊंगा, प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, बट व्हाट विल बी द प्रेशर एट पर्टिकुलर गिवन डेप्थ? व्हाट विल बी द प्रेशर एट गिवन पर्टिकुलर डेप्थ? व्हाट विल बी द, जस्ट a minute, what will be the pressure at given particular depth? So pressure at given depth, pressure at given depth h, ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन है, dp is equal to what, w dh. Let me integrate it. What will get, p w h plus constant of integration, plus constant of integration, plus constant of integration, okay, and at h is equal to 0, at h is equal to 0, p is equal to what beta, p atmospheric, at h is equal to 0, यहां पर h is equal to 0 है, तो फ्री सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, that will be your what, atmospheric pressure. So P is equal to what, atmospheric pressure. So what I can write, P is equal to P atm, that is your what, value of the constant of integration, that is your what, value of the constant of integration. So if I'll say P W H plus P atm, that will be your what, absolute pressure, that will be your what, absolute pressure, that will be your what, absolute pressure at given depth h, absolute pressure at any given depth h. If I'll say P atmospheric is tending to, means I am measuring the pressure with respect to or relative to
the atmospheric pressure. So this P absolute will convert into the P gauge. That will be your what? WH. Or simply what I am writing, that is your what? P is equal to WH. That is your what? Hydrostatic law. That is your what? Hydrostatic law. That is your what? Hydrostatic law. And what we can say, P is equal to small w rho g h. Small w is equal to rho g h. Small w is equal to rho g h. Now what you have to do, take this diagram, okay, that two lines are not required, okay, but I have given the example, that's what I have considered, okay. Now that is eliminated. This will be the sequence that you should take, then I'll proceed further, okay. Any doubt in between this, you may ask. क्या बेटा विपिन ऑब्जर्व नहीं करते? ये पहले लीजिए, फिर यहां तक आइए. फर्स्ट, सेकंड, ओके, नाउ थर्ड कंप्लीट, देन फोर्थ. ठीक है, दैट विल बी द सीक्वेंस. चलिए, डन. चलिए, देखो आशीष, एक गलती की आपने बोला जितनी ज्यादा हाइट होगी, नहीं, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. ये सही है. आपने हाइट की बात की, वो ऊपर जा रहे हैं, हम डेप्थ पर जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट वी प्रोसीड फर्दर. ऑब्जर्व करिएगा, P इज इक्वल टू व्हाट? रो जी एच आर डब्ल्यू एच. यहां से हाइड्रोस्टैटिक लॉ से क्या मैं ये बोल सकता हूं, दैट इज योर व्हाट? फ्री सरफेस. और जैसे जैसे मैं डेप्थ पर जाते जाता हूं, H इंक्रीज होते जा रहा है, रो बीइंग इनकंप्रेसिबल एंड G इज कांस्टेंट. सो H के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है? प्रेशर आपका इंक्रीज होते जा रहा है. H के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रहा है? जैसे जैसे मेरी डेप्थ इंक्रीज होते जा रही है,
प्रेशर क्या होते जा रहा है बेटा, इंक्रीज होते जा रहा है। प्रेशर क्या होते जा रहा है बेटा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगी प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, एंड द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज लीनियर, बिकॉज h की पावर में क्या है बेटा, 1 है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होते जा रहा है प्रेशर लीनियरली क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। गाजी अटैक मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा 250 मीटर, 275, 300, 350, 400, 450, इससे ज्यादा डेप्थ पर वो प्रेशर वेसल काम नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट सबमरीन की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज जो थिक प्रेशर वेसल है वो भी डिस्टॉर्ट होना या उसका कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जितना डेप्थ हमारा बढ़ते जाएगा प्रेशर उतना बढ़ते जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। हाइट के साथ ऊपर जाते जा रहे हैं, पहाड़ पर जाते जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। हमारे जो नर्व्स है, वेन्स, आर्टरीज है, वो भी क्या है, प्रेशर वेसल है। अब हमारी प्रेशर वेसल नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन के लिए बनी है, उससे उसके रेस्पेक्ट में हमारा प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द प्रेशर वेसल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। बट हम किसी एक लोकेशन पर जा रहे हैं ज्यादा हाइट पर, जहां प्रेशर क्या होते जा रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है बेटा। प्रेशर ड्रॉप हो गया और अंदर हमारे वेसल्स में सेम प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस, एक बाहर वाला ड्रॉप हो गया तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ड्रॉप हो गया तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस बढ़ने से कई बार नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो वेसल्स है वो फटना, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार गर्मियों में भी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एंड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, ऑन एनी स्पोर्ट्स, ठीक है, आउटडोर गेम्स, वहां पर भी क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो गया है। हमारी वेसल्स उस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाती, या प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होने के कारण वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नहीं बेटा देखो, अर्शद जैसे टाइटन सबमरीन हुई, टाइटन सबमरीन, ठीक है ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, टाइटैनिक जहाज बोलोगे तो वो आपका उसका अलग केस है, वो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में बता दूंगा, ठीक है। बट अभी जो आप बोल रहे हैं, हाँ टाइटन जो है वो ठीक है केस आप बोल रहे हैं सबमरीन, ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइट में जाते जाएंगे तो बेटा प्रेशर कम होते जाएगा, ओके। नाउ राइट डाउन, ये डायग्राम भी लीजिएगा एंड राइट डाउन वन स्मॉल हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड कॉलम टू अनदर liquid column. Conversion of one liquid column to the another liquid column. हाँ सही है, चलिए रिसेंट एग्जाम्पल मिल गया आप लोगों को, बधाई हो। बट जो स्वर्ग सिधार गए, हाँ प्लेन में भी हमें देखो एक और चीज है, जो प्लेन है उसकी जो विंडोज है वो एक्रिलिक ग्लास की बनती है। ये भी क्वेश्चन बनता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। हाई प्रेशर में प्रेशर डिफरेंस होते हुए भी उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। हाइट पर जाने के बाद वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है, बट हमें अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना है। तो कभी आप ये भी एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था बाली या इंडोनेशिया में या फिलीपींस में, कि किसी ने डोर ओपन कर दिया लैंडिंग के समय, पहले ही कर दिया, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है, धज्जियां उड़ने लगी, क्योंकि हमारा प्रेशर इनसाइड द बॉडी वो हायर है, ब्लड प्रेशर। तो ये चीज भी आप ऑब्जर्व करिएगा। इसलिए मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपोलोजन बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अभी हम जरा अपनी पढ़ाई पर, जितनी हमारी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जो ज्ञान जरूरी है वो मैं दूंगा, ठीक है।
So let you take this diagram and write down that one heading: conversion of one liquid column to the another liquid column. Okay, and first liquid I am considering that is having rho 1 density, and for pressure P1 that H1 depth is required. Okay, means P1 is equal to rho 1 GE H1. ठीक है बेटा. Another liquid लेता हूं, that is your what? First liquid P1 pressure, second liquid free surface, and यहां पर P2 प्रेशर के लिए ρ2 और डेप्थ जो आया H2. But obvious ρ2 is greater than ρ1, and I am saying, I am giving one constraint condition: P1 is equal to P2 and P2 is equal to what? ρ2 G H2. दोनों में प्रेशर सेम है बेटा. ओके, यहाँ H1 ज्यादा है क्योंकि ρ1 कम है, यहाँ ρ2 ज्यादा है तो H2 कम है. मीन्स ρ1 G H1 is equal to ρ2 G H2. हाँ है ना? G will get cancel out. ρ1 H1 is equal to ρ2 H2. और यहाँ एक काम करता हूं मैं, रो H2O से मैं इसे डिवाइड कर देता हूं. जो हम फंडामेंटल बनाते आ रहे हैं अब यूज होना शुरू हो जाएंगी चीजें. सबमर्सिबल नहीं है बेटा, सबमरीन है. सबमरीन सबमर्सिबल पंप होता है. ठीक है ना. ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2, और मैंने क्या किया, रो H2O स्टैंडर्ड फ्लूइड से, लिक्विड से डिवाइड कर दिया. तो व्हाट विल हैव S1 H1 S2 H2 कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले लिक्विड के लिए, पर्टिकुलर प्रेशर के लिए इतना डेप्थ मुझे जाना पड़ेगा तब ये प्रेशर मिल पाएगा. या H2 वाले लिक्विड के लिए, H2 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले लिक्विड के लिए मुझे H2 डेप्थ जाना पड़ेगा तो इतना प्रेशर मिलेगा. हाँ, यदि मैं बोलता हूं कि यहां पर मैं ये बोलता हूं ये 5 है और ये 2 है, सो 10 होना चाहिए, तो ये 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. मैंने बोला कि S1 5 है, 2 मीटर डेप्थ में जाने के बाद जो प्रेशर मिलेगा उतना ही, यदि S2 उतना ही आपको चाहिए, S2 2 है तो 5 मीटर डेप्थ में आप लोगों को जाना पड़ेगा. दैट इज वाई हम लोग जो है मरकरी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 13.6, समझ में आया? जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है बेटा 13.6 है वाटर के रेस्पेक्ट में. और वाटर का 13 मीटर हमें बनाना पड़ेगा लिक्विड कॉलम. उसकी जगह मैं 1 मीटर का वाटर, 1 मीटर का मरकरी का कॉलम बना लूंगा. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 13.6 मीटर को हैंडल करना आसान नहीं होगा वाटर के. उसकी जगह मैं क्या करूंगा, मरकरी का 1 मीटर का कॉलम बना लूंगा प्रेशर मेजरमेंट के लिए. दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी एंड लोअर वेपर प्रेशर के कारण हम लोग क्या यूज करते हैं, मरकरी एज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं. 13.6 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ द मरकरी. समझ में आई है कि नहीं आई है चीज? समझ में आई है कि नहीं आई है चीज? ये चीज को जरा समझ करके चलिएगा. ओके, नाउ वन मोर थिंग, P is equal to what? WH. So that H is what? P by W is termed as pressure head. Pressure head or static pressure head or static pressure head or static pressure head or static pressure head. ρ2 मैंने लिखा है ज्यादा क्योंकि H2 मींस यहां पर क्या हो गया आपका H2 कम ले रहा हूं. सेम प्रेशर है तो कम लेना पड़ेगा. या तो इस एग्जांपल को भी आप क्या करिए, जो मैंने यहां पर लिया है इसको भी इन्वर्ट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है. ये 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2 भी कर लीजिए, दोनों इक्वल होना चाहिए. दैट्स इट. अब
जो भी आपका बोर्ड में लिखा है एज इट इज, सभी कुछ आप यहां से बोर्ड से लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ आप यहां बोर्ड से लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इत्मीनान से। मेहनत करिए मेरे साथ, मैं भी लगा हुआ हूं आप लोगों के साथ मेहनत में, एक ही इन नियर फ्यूचर। सिंपल 13.6 एक चीज बोल दी, ठीक है, फंसिए मत आप चीजों, आप याद करने की तैयारी में मत रहिएगा, ठीक है। आपको ये लग रहा है तो सुनिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 और 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 दोनों सेम है। अब ये गणित आप बैठ करके लगाइएगा, ठीक है दीपक, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 13.6 के साथ 1 मीटर या 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ 13.6 मीटर। सर जिसका रो ज्यादा होगा उसका एच कम होगा, ठीक है अर्षद, सेम प्रेशर के। एग्जाम्पल दे दिया और आपके सामने, चलिए नाउ लेट वी टेक वन प्रॉब्लम हियर, नाउ लेट वी टेक वन प्रॉब्लम हियर। Write down calculate the pressure, calculate the pressure in Newton per meter square corresponding to, और किलो न्यूटन कर लीजिए, corresponding to a 6 meter of water column, 6 meter of water column, b 10 centimeter of Hg, C mercury column, C 40 centimeter of column of fluid, specific gravity is equal to 0.7। इन तीनों के लिए आप लोग किलो पास्कल में प्रेशर निकाल करके बताइए। तीन क्वेश्चन हैं एक साथ, ओके।
or no? Some कुछ गड़बड़ी है शिवम? ठीक है, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा आप लोगों को? फर्स्ट क्या बोल रहा है आप लोगों को? 6 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, P इज इक्वल टू वॉट क्या है बेटा? रो जी एच है हमारे पास। रो क्या है वाटर का? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 multiplied by h is what? 6 meter. What you'll get that? Let me know. For this, pressure is equal to what? 58.56 or 56.58. What you will get? Let me know. 58.56 kilopascal. All of you are getting this or not? Let me know. Yes or no? समझ में आया? या तो बेटा देखो ये 9810 आ रहा है, देखिएगा ना, सीधे किलो पास्कल में ही कन्वर्ट कर। अभी जो आएगा आप लोगों का यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर व्हाट? 58560 समथिंग पास्कल यू विल गेट। देन यू आर कन्वर्टिंग इट इज इनटू द 58.56 किलो पास्कल, नो इशू। या तो 1000 की जगह 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 की जगह आप 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 6 ही कर दीजिए, देन यू विल गेट इन द डायरेक्टली इन किलो पास्कल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी आप पुट कर देंगे, मींस रो जी इज नथिंग बट स्मॉल डब, उसमें भी आप लोग पुट कर सकते। Now 10 centimeter of the mercury, again P is equal to what? Rho GH. Rho is what? 13,600. G is what? 9.81 and 10 centimeter means 10 into 10 raised to power minus 2. What you will get? Let me know. 10 into 10 raised to power minus 2. What you will get? Let me know beta. 13 point. Okay. And divide by 1000 or 10 raised to power minus 3 directly, that you will get in the kilopascal. 13.34 kilopascal. I hope so that all of you are getting this. Yes or no? kilopascal में पूछा है, इसलिए हमें 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आई बेटा आप लोगों को? ठीक है। थर्ड वन, 40 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। सो रो क्या हो जाएगा इसका? 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं? डेफिनेशन से हम लोगों ने कहीं ये चीज देखी है। नाउ अगेन P इज इक्वल टू व्हाट? P इज इक्वल टू व्हाट? रो जी एच। एग्री? रो इज व्हाट? 700, G इज व्हाट? 9.81 multiplied by h, 40 सेंटीमीटर, so 40 into 10 raised to power minus 2। या तो 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करिए या रो को एस के फॉर्म में रख दीजिए। समझ में आया? 10 raised to power minus 3 in किलो पास्कल। व्हाट यू विल गेट? लेट मी नो। और इसकी जगह आप क्या करिए? 0.7 ही आप पुट कर दीजिए, नो इश्यू विल बी देयर, दैट यू विल गेट इन द किलो पास्कल। 2.746 किलो पास्कल।
इजी, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बेटा, जरा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure have been observed at four different points in different units as follows. First, 150 kilopascal. B, 1800 millibar, not 180. C, 20 meter of water. D, 1240 mm of Hg. Arrange the point in decreasing order of pressure magnitude. Decreasing order of pressure magnitude. अरे प्रेशर की क्या यूनिट बेटा, बता देता हूं प्रवीण, थोड़ा ना इसको जरा नोट करिए, फिर मैं बताता हूं, फिर सॉल्व करिए। OGH P is equal to what? Rho GH or a small WH. Yes or no? P and kilonewton per meter cube multiplied by meter. Yes or no? So that is your what? Kilonewton per meter square. But बात ये है बेटा, P is equal to what? A small WH and H is what? P by W. That is your in the meter and that is your in what? Kilonewton per meter square divided by meter cube. So what you will get? Kilonewton per meter cube. So kilonewton meter that you will get in the meter. हाँ है ना? अब कितना मीटर ऑफ वाटर है उससे भी प्रेशर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कितना मीटर ऑफ मरकरी है, मरकरी कॉलम है, वाटर कॉलम है, उससे भी प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है। और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था प्रीवियसली। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेशर हेड, सिंपल प्रेशर बोला तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हाटएवर। प्रेशर हेड बोला तो इन मीटर, हाइट की बात कर रहा, हाइट के टर्म में हमने बता दिया किसकी हाइट में, वाटर कॉलम, मरकरी कॉलम, 0.7 लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉलम। समझ में आई ये चीज? इजी है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए। ऑलरेडी ये चीजें नोट की हैं आपने, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ आंसर आ गया सी बी डी ए। ठीक है भाई प्रिंस, सही है आपका। ऑब्जर्व करते हैं जरा वन बाय वन।
एक ये जो किलो पास्कल में है, हम सभी को किलो पास्कल में, बाकी के बचे हुए को चेंज करके देख लेते हैं कि इससे बड़ा है, छोटा है, व्हाटएवर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है आपको। अब ये जो 1800 मिली बार है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये भी याद रखिएगा। ऑलरेडी आई होप सो इतना आपको पता हो दुनिया में। सो बी के लिए कैलकुलेशन करते बेटा हम लोग, 1800 इंटू मिली मीन्स 10⁵, बार को मैंने पास्कल में 10⁵, हाँ है ना। सो दैट विल बी योर व्हाट, 180 किलो पास्कल। इतना आ रहा है कि नहीं, जरा चेक करिए। यहां से 2 जीरो आएंगे और डिवाइड बाय 1000 तो 3 जीरो कट जाएंगे, मींस 180 किलो पास्कल दैट यू विल गेट, हाँ है ना। जरा चेक करिएगा। सी को जरा चेक करते हैं बेटा, 20 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। सो रो जी एच, रो इज व्हाट, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, या तो मैं सीधे बोल दो रो जी इज इक्वल टू व्हाट, 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 20, हाँ है ना। 200 से थोड़ा ही कम, 10 गुना होने से ज्यादा, 10 गुना होते होते, सो 196 किलो पास्कल अप्रोक्सीमेटली दैट यू विल गेट, हाँ है ना। देन इसके बाद 1240 mm ऑफ मरकरी, अगेन डी रो जी एच, रो इज व्हाट 13,600 और 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 डायरेक्टली डिवाइड बाय 1000 कर दिया, जी भी हो गया। देन इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, H is what 1240, so 1.24 meter of the Hg. What you'll get, let me know. What you'll get, let me know. 165.345 किलो पास्कल। यहाँ 0.2 भी ले लीजिएगा बेटा साथ में। अब सीक्वेंस बताइए मुझे, हाईएस्ट वन इज व्हाट, सी, देन बी, देन डी, देन ए। So C is greater than B is greater than D is greater than A. That will be your what sequence in the decreasing order. Let you take this as soon as possible. समझ में आया इतना क्या हुआ बेटा? Its measurement. So chapter name is what? Again second part is what? Measurement.